Hello, learners, and welcome back to your own channel, LIY English. Learn it yourself. I have a question. Do you like movies? Or let me correct my question, who doesn't like movies? I'm sure the answer is no one, because we all love movies. Now, there might be differences in our likings and preferences for the kind of movies, but one thing is common that we all enjoy watching movies. So, today's video is going to be a treat for all the movie lovers because we are going to learn the writing skill for 11th and 12th standard, which is film review. It comes for 4 marks in exam. It will come for 4 marks in your HSC boards exam, and as per the assessment criteria, these 4 marks are distributed among presentation of the theme, novel aspects, and overall presentation. This is a new topic, but not to worry because in this video we will learn in detail film review, what is a review, what is a film review, what are the steps that we should follow to write a film review, what is the format that we have to keep in our mind, and finally together we will solve an example question from HSC question bank. So do watch the video till the end. Now let us start learning. Before we jump to the main topic of film review, let us first understand what does review mean. Now, the concept of review is not just limited to film or movies, because a review is an expression of your personal views, thoughts, ideas, feelings, and judgment towards something. Now, that thing can be a film, documentary, book, or a video. It means when you are reviewing something, basically you are presenting your thoughts and ideas about something. Now, let us understand what does film review means. A film review is a critical appraisal of a film published in a newspaper, magazine or online. जब भी कोई नई मूवी रिलीज होती है तो जो मूवी क्रिटिक्स है वो उस मूवी को वॉच करते हैं, उसे एनालाइज करके अच्छे से उस पर अपना रिव्यू प्रेजेंट करते हैं और ये रिव्यूज न्यूज़पेपर, मैगजीन और ऑनलाइन पे पब्लिश होते हैं. और ये रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द बिजनेस ऑफ दैट मूवी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मूवी देखने से पहले उसके रिव्यूज़ पढ़ते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि क्या उन्हें ये मूवी देखनी चाहिए या नहीं. A film review gives you an opportunity to express opinions about the movie, including its various characters, plot, special effects and special features and everything. So basically आपको इस क्वेश्चन के लिए 4 मार्क्स में किसी एक मूवी का रिव्यू लिखना है. लर्नर्स, किसी भी मूवी का रिव्यू लिखने के लिए हमें उसे अच्छी तरह से देखने के बाद उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स को एनालाइज करने के बाद उसका रिव्यू लिखना पड़ता है. और ये एस्पेक्ट्स होते हैं कैरेक्टराइजेशन, सिनेमाटोग्राफी, डायरेक्शन, म्यूजिक एंड साउंड, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटर, जॉनरा, प्लॉट एनालिसिस. हमको ये सारी चीज़ें अपने रिव्यू में इंक्लूड करनी होती है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम इन डिटेल. लेट्स स्टार्ट विथ जॉनरा. जॉनरा मीन्स कैटेगरी और टाइप. मूवीज़ बहुत अलग अलग टाइप्स की होती है. फॉर एग्जाम्पल थ्रिलर, हॉरर और रियल लाइफ मूवीज़, स्पोर्ट्स मूवीज़, फिक्शन, साइंस फिक्शन एंड सच काइंड ऑफ थिंग्स. तो अलग अलग जो टाइप्स है मूवी का, सबसे पहले रिव्यू में आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करना है कि आपकी जो मूवी है जिस पे आप रिव्यू लिख रहे हो वो कौन से जॉनरा की है. देन कम्स योर प्लॉट एनालिसिस. आपको अपनी रिव्यू में प्लॉट एनालिसिस देना है. बेसिकली जो मूवी है उसका स्टोरी लाइन ब्रीफ में आपको डिस्क्राइब करना है कि मूवी किस बारे में है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, उसकी बेसिक स्टोरी लाइन क्या है. देन मूवी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनका पोर्ट्रेयल कैसा हुआ है, वो क्या इफेक्ट छोड़ते हैं ऑडियंस पे, आपको इस पर भी लिखना है. देन सिनेमाटोग्राफी विच इन्वॉल्व्स कैमरा वर्क एंड लाइटनिंग एंड वेरियस इफेक्ट्स, स्पेशल इफेक्ट्स, ये सारे टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे भी आपको रिव्यू देना होता है. देन डायरेक्शन. डायरेक्शन इज द मोस्ट क्रूशल पार्ट ऑफ एनी फिल्म, because director is a storyteller and he is like the captain of the ship. किसी भी मूवी की सक्सेस बहुत हद तक डिपेंड करती है डायरेक्शन पे भी. देन म्यूजिक एंड साउंड. उस मूवी में जो सॉन्ग्स है या सॉन्ग्स नहीं भी है तो बैकग्राउंड स्कोर, स्पेशल साउंड इफेक्ट वो कैसे है, यू हैव टू रिव्यू देम. देन एक्टिंग, जो बहुत प्रोमिनेंट पार्ट है किसी भी मूवी का, सबसे पहले नोटिस होने वाली चीज़ है कि जो एक्टर्स है उन्होंने अपना रोल कैसे प्रेजेंट किया है. देन स्क्रिप्ट राइटिंग को भी रिकॉग्नाइज करना पड़ता है, बिकॉज स्क्रिप्ट राइटिंग ही एक फाउंडेशन या बेसिस होता है किसी भी मूवी का. एक अच्छी और पावरफुल स्क्रिप्ट से ही एक अच्छी मूवी बनती है. सो दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स जिस पे आपको रिव्यू लिखना है. नाउ लेट अस लर्न व्हाट आर द स्टेप्स जो हमको फॉलो करने हैं किसी भी फिल्म का रिव्यू लिखने के लिए. तो ये जो स्टेप्स है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. स्टेप 1, वो चीज़ें जो आप मूवी देखने से पहले करोगे.
देन स्टेप 2, ऐसी चीज़ें जो आपको मूवी देखते समय ध्यान में रखना है। और स्टेप 3, मूवी देखने के बाद आप रिव्यू को किस तरह से लिखोगे। लेट अस स्टार्ट विद स्टेप नंबर 1, बिफोर वॉचिंग द मूवी। इफ़ यू इंटेंड टू राइट अ मूवी रिव्यू, सबसे पहले आपको उस मूवी की जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि टाइटल, टाइटल का सिग्निफिकेंस, ईयर ऑफ रिलीज, नेम ऑफ द स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कैरेक्टर्स और जॉनरा, टाइप ऑफ फिल्म्स, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पहले ही बिफोर हैंड ले लेनी है, नोट डाउन कर लेनी है। देन यू मूव ऑन टू स्टेप नंबर 2। मूवी देखते समय आपको बहुत अटेंटिवली और अलर्ट रह के मूवी को देखना है, बिकॉज आप इसको सिर्फ इंजॉय नहीं कर रहे हो, आपको इस पे रिव्यू लिखना है। तो कई बार मूवी क्रिटिक्स एक से ज़्यादा बार मूवी देखते हैं, ऐसे हमें देखना पड़ता है। अगर हमें रिव्यू देना है और बहुत अच्छा रिव्यू देना है, ऑब्जेक्टिव रिव्यू देना है, तो कई बार हमें मूवी को 1 से 2 बार देखना पड़ता है। और देखते समय हम नोट्स लिख सकते हैं, सो दैट ये नोट्स हमें बाद में हेल्प करेगी उस मूवी का रिव्यू लिखने के लिए। नोट्स आप लिखोगे जितने भी मेजर माइनर इवेंट्स हैं, सीन्स है, एक्टिंग है, सिनेमाटोग्राफी, लोकेशन, प्लॉट, कैरेक्टर्स, मॉरल, म्यूजिक, डायरेक्शन, सेट डिज़ाइन, बैकग्राउंड म्यूजिक, ये सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स के ऊपर आपको नोट्स प्रिपेयर करनी है while you are actually watching the movie. देन द थर्ड एंड द लास्ट स्टेप आफ्टर वॉचिंग द मूवी, जब मूवी आपने पूरी तरह से देख ली है, उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपने नोट डाउन कर ली है, देन यू विल चूज अ प्रॉपर फॉर्मेट। एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है मूवी रिव्यू राइटिंग का। आप अपने हिसाब से अपने रिव्यू को प्रेजेंट कर सकते हो। बेसिक फॉर्मेट यही है कि या तो आप पैराग्राफ फॉर्म में लिखो, या फिर जो अलग अलग एस्पेक्ट्स है जिस पे आप रिव्यू दे रहे हो, उसको पॉइंट या हेडिंग के फॉर्म में क्रिएट करके आप प्रेजेंट कर सकते हो। सेकेंडली, आपको अपने रिव्यू के कंटेंट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है, प्रॉपर ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना है। ऐसे नहीं कि फर्स्ट लाइन या फर्स्ट पैराग्राफ में ही आप बहुत ज़्यादा हैवी और सब्जेक्ट और टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे बात करने लग गए हो। सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर कंटेंट प्रॉपरली, यूज़ प्रॉपर लैंग्वेज एंड वोकेबलरी। बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं मूवी के जिसमें टेक्निकल टर्म्स यूज़ होते हैं, सो यू शुड लर्न दोज वोकेबलरी, दोज टेक्निकल टर्म्स। ऐसे नहीं कि आप अपना रिव्यू लिख रहे हो तो वो बहुत लेमैन लैंग्वेज साउंड कर रहा है। सो यू शुड लर्न जो भी टेक्निकल एस्पेक्ट्स और टेक्निकल टर्म्स हैं मूवी मेकिंग में जो यूज़ होते हैं, यू शुड यूज़ दोज वोकेबलरी। Then finally, edit, proofread, and get rid of all the mistakes, grammatical mistakes, spelling mistake before you finally present your review. So this is how you will write your review. Now let us look at the format of the film review. आपको अपने रिव्यू को बेसिकली ये 4 टॉपिक्स के ऊपर डिवाइड करना है। सबसे पहले आप स्टार्ट करोगे इंट्रोडक्शन से। जो फर्स्ट पैराग्राफ आप लिखोगे उसमें आप मूवी का टाइटल, उसका सिग्निफिकेंस, ईयर ऑफ रिलीज, डायरेक्टर एंड मेजर एक्टर्स, ये सब से इंट्रोड्यूस करोगे। देन आप स्टार्ट करोगे प्लॉट समरी से। प्लॉट समरी होता है बेसिक स्टोरी लाइन। मूवी की बेसिक स्टोरी लाइन क्या है, मूवी में क्या होता है, हम क्या देखने वाले हैं उस मूवी में, उसकी स्टोरी, जो बेसिक स्टोरी है, आप बहुत ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे। और हमें बहुत कॉशियस रहना है वाइल गिविंग द प्लॉट समरी। वी शुड नॉट गिव एनी स्पॉयलर्स। ऐसे नहीं कि आपका रिव्यू पढ़ने के बाद रीडर्स को लगे कि अब मूवी देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब कुछ पता चल गया है। सो यू शुड नॉट स्पॉइल द मूवी फॉर एनीवन. Then you have to analyze all the different aspects of the movie making, that is cinematography, lighting, music and sound and direction, characterization, acting, dialogue, setting. इन सब पे आपका क्या ओपिनियन है, ये सब मूवीज में आपको कैसे लगा है, यू हैव टू गिव द एनालिसिस। एंड लास्ट में आप कंक्लूड करोगे कि ओवरऑल इम्प्रेशन आपका आपके ऊपर उस मूवी का कैसा रहा है, कोई स्पेशल फीचर जो आपको बहुत स्पेशल लगा है, किस चीज़ की वजह से ये मूवी दूसरी मूवीज से अलग है। यू हैव टू गिव योर फाइनल जजमेंट। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप ये भी बता सकते हो वेदर द मूवी इज़ वर्थ द वॉच। नाउ लेट अस सी कि एग्जाम में मूवी रिव्यू, फिल्म रिव्यू 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन कैसे आएगा। सो ये क्वेश्चन मैंने लिया है HSC बोर्ड रिलीज्ड क्वेश्चन बैंक से। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा जहाँ पे आपको हेल्प के लिए पॉइंट्स भी दिए रहेंगे कि आपको अपना रिव्यू जो है मूवी का इन पॉइंट्स पे बेसिस करना है। मोस्ट प्रोबेबली मूवी का टाइटल नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकल कि जो मूवी टाइटल है वो सारे लोगों ने मूवी देखी होगी। तो मोस्टली दे विल गिव यू द जॉनरा और कैटेगरी के, ये कैटेगरी की कोई मूवी आपने देखी है और उस मूवी के ऊपर आपको रिव्यू लिखना है। जस्ट लाइक दिस क्वेश्चन: As a part of the Child Film Festival, your college had arranged screening of some films made for the children.
Write a review of one of the films based on the theme of children with special needs. Use some of the points given below to write your review. Title of the film and its importance, the star cast, the central idea of the film, performance by the actors, protagonist of the film, the message given in the film, your opinion and recommendations. एज आई सेट कि प्रॉपर फॉर्मेट नहीं है, फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं है. आप या तो पैराग्राफ वाइज लिखो या फिर क्वेश्चन में जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं उसको ही हेडिंग बना के भी लिख सकते हो. पैराग्राफ फॉर्म में आप लिख रहे हो तो ये सारी जो पॉइंट्स अगर आपने लिखे हैं उसको आप अंडरलाइन कर दोगे, इट विल बी बेटर फॉर यू. सो यहाँ पे थीम दिया गया है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स. सो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स किसी मूवी का थीम, तो एक ही मूवी हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है एंड दैट इज तारे ज़मीन पर, स्टार्स ऑन अर्थ. सो देखिए कैसे लिखते हैं हम मूवी रिव्यू. I have written the movie review in paragraph form. The directorial debut of Mr. Perfectionist Amir Khan's Tare Zameen Par surely looks like the labor of love and passion for the subject which it stands for. The title of the film so aptly justifies the message it contains that every child is special. The film starts with showing the everyday struggles of an 8-year-old boy named Ishan who's suffering from dyslexia and is a slow learner. He is never understood or supported by his parents who put him in a boarding school thinking he is stubborn and notorious. The situation gets worse in boarding school for Ishan until a drawing teacher gets an appointment there as a temporary teacher who helps him out. The film gives a delightful insight to the protagonist's fantasy world by showing spinning objects around his head by an animated sequence. The remarkable feature of the film is that the only star of the film appears on screen only after interval, which shows that the movie is not about him. Amir Khan does a fabulous job both behind and in front of the camera. But the show is stolen by the protagonist of the story, the child actor Darshil Safari. Right from the first scene till the end of the movie, he keeps the viewers hooked to himself. Darshil Safari is too good an actor for his age. Amol Gupte has written a brilliant story. Shankar Ehsaan Loy's music and Prasoon Joshi's lyrics have uplifted the film overall. I believe Tare Zameen Par has the ability to touch a chord in everyone's heart. The movie is not just about the special needs children, it is about every child and every parent, or even our society in general. The movie has beautifully wrapped up the beautiful message that every child is special with the captivating and spellbound visuals. Everyone must watch this movie at least once. So this is how, learners, you will write the review. And remember, review is expressing your opinion and ideas. So don't hesitate to present your opinions. The judgment will be on your writing skills, that how able you are to present your views into words, and your analytical skills. So this is how you will write the review. I hope you found this video useful and you enjoyed learning with me. If you did, give this video a thumbs up, share among your friends, and subscribe to the channel. Thank you very much.